بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے، لیکن الیکشن کمپین جاری ہے۔ آج سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے مانسہرہ اپنے یعنی کہ جہاں انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہوئی ہے مریم نواز کی، وہاں پر آج جلسہ کیا، اور اس جلسے میں انہوں نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے اتنی چیزیں گنوائیں بنانے کی جو کہ پورا پاکستان کا بجٹ اگر خرچ کر دیا جائے نا تو وہ مانسہرہ پہ جتنی چیزیں گنوائی نا ان کی وہ پورا نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایئرپورٹ بنانے کی وہاں بات کی ہے، انہوں نے میٹرو ٹرین چلانے کی بات کی ہے، انہوں نے وہاں پر جو صاف پانی ہے وہ شگریان سے لانے کی بات کی ہے، انہوں نے وہاں پر سڑکوں کے جال بچھانے کی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ موٹر وے جو ہے نا اس کا جال یہاں سے بچھایا جائے گا اور یہ پورا پاکستان جو ہے وہ مانسہرہ کے گرد گھومے گا۔ اچھی بات ہے، یعنی کوئی بھی خواب دکھانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن خواب ڈرانے نہیں ہونے چاہیے۔ خواب وہ ہوتے ہیں جن کی کوئی تعبیر ہوتی ہے۔ اور آج اسی طرح بلاول بھٹو زرداری نے ساہیوال میں جیالوں سے خطاب کیا ہے، انہوں نے بھی وہاں یہ کہا ہے کہ ہم 300 یونٹ بجلی جو ہے نا اس کا بل فری کر دیں گے۔ اور اللہ کے بندوں مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان کی 80% جو لوگ ہیں نا ان کا بل 300 یونٹ آتا ہے، اور یہ کھربوں روپے میں بات بنتی مہینے کی۔ کوئی ایسا طریقہ کار بتاؤ نا جس کی بنیاد پر آپ یہ وہاں سے لیں گے اور یہاں دے دیں گے۔ اب بھائی مریم نواز نے کہا 200 یونٹ، اب انہوں نے کہا 300 یونٹ۔ اب دیکھیے کہ مریم نواز یہ وعدہ پورا کرتی ہے یا یہ بلاول پورا کرتے ہیں، یا کہ وہ شیر کہ جس کا انہوں نے دیواروں میں چنا ہوا ہے اور جیل کی سلاخوں میں ہے، عمران خان بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب میدان سجتا ہے تو 8 فروری کو کیا نتائج نکلتے ہیں۔ حالانکہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے آج بڑی ایسی بونگی ماری ہے کہ میں یہاں الیکشن لڑنے آیا ہوں، وزیر اعظم بننے نہیں آیا۔ بھائی آپ تو جب لندن سے چلے تو آپ نے کہا میرے ہاتھ میں پروانہ ہے وزیر اعظم کا۔ پاکستان کی جو وہ جو قوتیں ہیں جنہوں نے یہ اقتدار بخشنا ہے، انہوں نے میری منتیں کی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی واپس آ جاؤ اور پاکستان کے حالات سنبھالو۔ تو اب یہ ڈنڈی، اب یہ پہیا الگ سے چلنا شروع ہو گیا، کیونکہ اب پاکستان کے عوام کی چاہت، پاکستان کی عمران خان سے محبت نے یہ سارا پاسا پلٹ دیا ہے، اور وہ اقتدار دینے والے لوگ بھی اس مشکل میں پڑ گئے ہیں کہ اگر عوام ان کو ووٹ نہیں دیتے تو ہم ان کو اقتدار کیسے دیں گے۔ تو اسی طرح یہ شہباز شریف نے کچھ باتیں کی ہیں، اور بلاول بھٹو نے تو یہ کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم کا جو کینڈیڈیٹ نواز شریف ہے وہ میرے مقابلے میں آئے اور ہمارا بیٹھ کر مباحثہ ہونا چاہیے ٹی وی چینلوں پہ۔ اٹ از گڈ سجیشن، لیکن دیکھیے کہ جھوٹ کے دعوے، جھوٹ کے وعدے۔ اب وہ بلاول بھٹو نے کہا لاہور میں جلسہ کیا، اچھا جلسہ تھا۔ آج مانسہرہ میں نواز شریف کا اچھا جلسہ تھا، اور اس طرح جلسے تو اچھے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جب لوگوں کو 100 کلومیٹر سے 200 کلومیٹر سے بھر کے لایا جاتا ہے تو انسان تو نظر آتے ہیں، لیکن ان کا چارج ہونا، ان کا جوش، جذبہ، ولولہ یہ بتاتا ہے کہ ان کو لایا گیا ہے یا لائے گئے ہیں یا لائے ہوئے۔ اب دیکھو نا، اب یہ افضل شیر مروت جو ہے وہ جس جگہ بھی جاتا ہے وہاں لوگ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، کراچی ہو، لاہور ہو، خیبر پختونخوا ہو، جمع ہو جاتے ہیں۔ نہ ان کو کوئی لانے والا ہے، نہ ان کو کوئی بریانی کھلانے والا ہے، اور نہ ان کو واپس بھیجنے والا ہے۔ یہ ہوتا ہے جذبہ۔ اب دیکھیے کہ یہ بلے کا نشان چھین کر جہیز کا سامان دے دیا گیا ہے، کسی کو ریڈیو دیا ہے، کسی کو چاقو دیا ہے، کسی کو بینگن دیا ہے، کسی کو آلو دیا ہے، کسی کو ABC کے الفاظ دیے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ مرحلہ بھی چلا جائے گا، اور عوام نے اپنے دلوں پہ جس شخص کے لیے
वोट रखा है 8 फरवरी को, वो उधर ही मोहर लगाएंगे। आज हमने इन सारे इलेक्शन के मामलात को देखने के लिए अपने पाकिस्तान के जो ब्यूरो चीफ हैं, पेशावर से ब्यूरो चीफ हैं नूरुल हसीब साहब, वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। राजा शौकत साहब जो नुमाइंदा इस्लामाबाद के वो शामिल हैं। गफरान खान साहब नुमाइंदा है कोयटा के वो शामिल हैं। और फयाज हुसैन ब्यूरो चीफ हैं कराची के, वो आज अपने अपने इलाकों के बारे में, अपने सूबों के बारे में, वहाँ की जो भी ये इलेक्शन की सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। और स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं पीटीआई की रहनुमा और जो पहले भी इलेक्शन लड़ चुकी हैं मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा। मैं ज़ेबा नाज साहबा आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम टू द शो। शुक्रिया। तो आप ये बताएं कि ये लाहौर में इलेक्शन कैसा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहसान साहब, मैं समझती हूँ कि जितना इलेक्शन होने को अब थोड़े से दिन रह गए हैं, अब जिन लोगों को ये मान था, तरान था कि हम वायदा करके आए हुए हैं और हमें इलेक्शन में जाने के लिए ना तकरीर की ज़रूरत है, ना जलसे की ज़रूरत है, और ना ही हमें कुछ भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सिलेक्ट, आज भी वो मानसेरा में अवाम से वो मुखातब थे और उन्होंने मानसेरा में कहा कि मैं इलेक्शन जीतने नहीं, मैं इलेक्शन वज़ीर आज़म बन के नहीं आया, मैं इलेक्शन लड़ने आया हूँ आपके पास। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बेटी मरियम ने कहा कि मैंने मानसेरा आपके साथ जाना है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं खुद जा रहा हूँ और जाके वहाँ पे मेरी स्पीच है। और फिर वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे ऑरेंज ट्रेन बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ हवाई अड्डा बनाना चाहता हूँ, मुझे टाइम दिया होता तो मैं यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटियाँ देना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, नवाज शरीफ ने अब अगर गली गली में जाके वोट भी मांगने की ज़रूरत पड़ी है, ये ढील में ढील हो गई है, क्योंकि तरीके इंसाफ बानी चेयरमैन जो हैं जनाब इमरान खान साहब ने, जो जेल में भी रह के डटे हुए हैं और उन्होंने किसी का कोई मुआहदा नहीं किया किसी के साथ, जैसे कि दोनों दफा नवाज शरीफ साहब मुआहदा करके चले गए। अच्छा, ये लाहौर की 12 सीटें हैं जी जी, इसमें आपके कैंडिडेट मौजूद हैं जी, मुस्लिम नून के भी हैं और बिलावल भुट्टो सरदारी ये कल के इलेक्शन लड़े। आप लाहौर में अपनी इस इलेक्शन कैंपेन को कैसा देख रहे हैं? जी, इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह कि ये पाकिस्तान में आइंदा इलेक्शन होंगे, उसमें आप देखेंगे कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ पीटीआई असलियत से जीतेगी। आपने मुझे लाहौर की सूरत हाल बताए, जो 12 एमएनए की सीटें हैं और 24 एमपीए की सीटें हैं, इस पे क्योंकि पहले होता ये था कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून जीतती थी जी, अब पीटीआई ने पीछे इलेक्शन में कुछ सीटें जीत कुछ हारी, लेकिन इस इलेक्शन में आपकी क्या सूरत हाल है? मैं वही अहसान साहब, आप मुझे ट्रैप कर देते हैं बीच में, अगले आप कॉल लेने के लिए तो मेरी बात बीच में ही रह जाती है, तो मैं उसी से शुरू करूंगी कि आज हमारे सारे जालम तेरा जुल्म रहेगा कब तक आबाद। अच्छा, अब देखिए कि चौधरी परवेज अलाई साहब की फैमिली जो कि पर्देदार फैमिली थी, उसको भी मैदान हक में बाहर आना पड़ा, जबकि जालिम हुक्मरानों ने और इलेक्शन कमीशन ने और आरओ ने उनके कागजात मुस्तरद कर दिए। तो अब उनकी बेगम और उनकी बहन मैदान में है और इंशाल्लाह ताला इतने वोट गुजरात के लोग उनको देंगे, इतने लोग देंगे कि शाफे और सालक और जितने भी वहां पे कैंडिडेट हैं उनके जमानतें जब्त हो जाएंगी। और ये आप देखेंगे कि हमारी सुमेरा अलाई बीबी जो है वो वहां से इलेक्शन लड़ रही हैं, हमारी जो क्या नाम है हमारी दूसरी बहन जो है हमारे परवेज अलाई साहब की बेगम जो खड़ी हैं, उनकी बेगम उनको भी देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला कितनी असरियत से वहां से इलेक्शन जीतेंगी। मैं कैसरा साहबा का नाम लेना सॉरी भूल गई थी, सुमेरा अलाई साहबा और कैसरा साहबा। अच्छा, आप मैंने आपसे गुजारिश की है कि लाहौर की गुजरात की होगी, लाहौर में जैसे लतीफ खोसा हैं जी, ठीक है, इस तरह
क्योंकि आपकी राय जो है वो हल्का 122 में है, जी तेईब खोसा है वहाँ पे, जी जी बाकी 12 हल्कों में भी आपके कैंडिडेट मौजूद हैं। जी। तो आप ये बताएं कि अब पिछले 2018 से ज्यादा सीटें आप लेके जाएंगी या कम होंगी? एहसान साहब, इलेक्शन होने दें, इंशाल्लाह ताला आपको दूध का दूध और पानी का पानी। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, मैं लाहौर की बात कर रही हूँ, लाहौर की मैं लाहौर की बात कर रही हूँ। आप असलियत देखिएगा कि पीटीआई ने कितने वोट लिए होंगे और पीटीआई कितनी असलियत से जीतेगी, ये आपको भी पता चल जाएगा। आवाम की दिलों की धड़कन। ना आपको जलसा करने देते हैं, बिल्कुल ना ना आपको करने जुलूस दें, निकालने बिल्कुल देते हैं, कुछ नहीं जरूरत ना आपको हमें। कैंपेन करने देते, तो ये किस तरह आप दावा करती हैं? ये गुंडागर्दी है, ये बदमाशी है, और ये पार्टियां अपना आम मनवा ले। कहते हैं ना कि उतना जुल्म करे जितना बर्दाश्त कर सके। जब इंशाल्लाह ये इलेक्शन के बाद हम आवाम में जाएंगे, ये भी जाए ना आवाम में, हम तो अभी भी आवाम के अंदर हैं, ये भी जाएं, मरियम जाए, नवाज शरीफ जाए। ये सिर्फ स्टेजों पे खड़े होके नाम करने से, अब ये सड़कें गिनाने से, ब्रिज गिनवाने से तो हुकूमत नहीं बनती। हुकूमत बनती है आवाम को रिलीफ देने से। आप आटा सस्ता करें, दाल सस्ती करें, घी सस्ता करें, आवाम की दिलों की धड़कन को देखें। नवाज शरीफ ने मानसेरा के जलसे में कहा, मानसेरा के जलसे में नवाज शरीफ ने आटा दाल के भाव बताया लोगों को। जी जी, उन्होंने बताया कि मटर क्या भाव है। मटर की बिल्कुल बिल्कुल, आपने कभी किया? जी, हम तो खुद देते रहे हैं। ये कौन सी अपने 40 साल के दौर में, मुझे बता दे, कौन सी इन्होंने दूध की नहरें बनाई हुई थी? कौन सी आवाम को रिलीफ मिला हुआ था? राय शौकत साहब, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र जनाब, शुक्र जनाब। ये राय शौकत साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के। तो राय साहब, मैं आपसे पूछता हूं कि इस्लामाबाद की जो 3 सीटें हैं उसमें किस पार्टी का पल्ला भारी है, कौन कौन से लोग मुकाबले में हैं, और वहां पर किस पार्टी को क्या तकलीफ और किस पार्टी को वहां पे रायतें दी जा रही हैं? सब दोस्तों को जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जनाब माशाल्लाह बड़ा अच्छा जी आपने ये सिलसिला शुरू किया है सियासत के हवाले से गुफ्तगू, और सब दोस्त अपने अपने जो तज़िये हैं वो शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान से। जनाब इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, और इस्लामाबाद की तकरीबन कुल आबादी जो डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद की बनती है वो है तकरीबन कोई 20 लाख के लगभग। और इसके 3 हलके हैं, NA 46, NA 47 और 48। जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त आ रही है, बोले आप। अच्छा, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो माजरत कोई अगर थोड़ा मसला बन जाए तो मैं कोशिश तो करता हूँ को। अच्छा ऐसे है कि जो NA 46 है वहां से पुराने मुस्लिम लीगी हैं जो यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, अंजम अकील खान, बहुत बड़ा नाम है, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट है। पहले भी एक दफा वो यहाँ से इस हल्के से मुंतखब हो चुके हैं, और 2 इलेक्शन जो है वो हार चुके हैं असद उमर के मुकाबले में, और जवेद हाशमी साहब जो हैं उनके मुकाबले में तकरीबन, बल्कि ये 3 इलेक्शन हार चुके हैं, ज़मीनी इलेक्शन मिलाकर ये 3 इलेक्शन हार चुके हैं आज तक। और 1 इलेक्शन इन्होंने विन किया था, उस वक्त भी वो मुशर्रफ दौर में ये था कि इनकी हमायत की थी जमात इस्लामी ने भी, तो उस वक्त जाके ये इन्होंने इलेक्शन विन किया था। आगे वो पीपल पार्टी जरदारी साहब का दौर आ गया तो वो इलेक्शन जीत के तो उस वक्त। तो अभी सूरत हाल ये है कि वहां से असद उमर जो है वो पिछले 2 इलेक्शन जो है वो जीत चुके हैं। एक ज़मीनी इलेक्शन जीते थे, जवेद हाशमी ने जब पीटीआई को खैर बात कहा था, एक ज़मीनी इलेक्शन जीते थे, और पिछला जो 2018 वाला इलेक्शन था वो भी असद उमर ने विन किया था भारी अक्सरियत से, NA 46 से। तो अभी सूरत हाल ये है कि क्योंकि असद उमर साहब जो है वो भी पार्टी को खैर बात कह चुके हैं, बल्कि सियासत से उन्होंने लातल्की का इजहार कर दिया, सियासत छोड़ चुके हैं। तो इस वक्त अंजम अकील खान के लिए जो
اس وقت میاں صاحب نے ٹکٹ دیا تھا وہاں پہ. پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ ٹکٹ کا میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ٹکٹ کا وہاں کافی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں جو ٹکٹ کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا تھا. ایک ہمارے وہ اپنا شاہ صاحب ہیں ڈاکٹر توقیر صاحب, ان کے عزیز ہیں جو ڈپٹی میئر اسلام آباد بھی رہے ہیں, ذیشان شاہ عرف شانی شاہ, وہ بھی بڑے کیونکہ اوپر شاہ صاحب کی سپورٹس تھی میاں برادران کے ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ توقیر شاہ صاحب کی کیا ان کے ساتھ ریلیشن ہے میاں برادران سے, اور ابھی بھی وہ ایک اچھے عہدے میں بیٹھے ہوئے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی. تو شانی شاہ جو ہیں انہوں نے بھی کافی زور, ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ یہ جو ہے وہ مجھے ملے, اور وہ کزن ہے ملک ابرار اور ملک افتخار جو ایم این اے اور ایم پی اے 3 دفعہ رہ چکے ہیں پنڈی والے حلقے سے. انہوں نے بھی کافی زور لگایا کہ یہ ٹکٹ جو ہے اس حلقے کا ہمیں مل جائے. لیکن انجم وکیل خان صاحب جو ہیں وہ کیونکہ ان کے میاں صاحب کے ساتھ بڑے میاں صاحب کے ساتھ رائے شوق صاحب, یہ جو انجم وکیل صاحب ہیں یہ جو زمینوں کے فراڈ میں بھی ان کے خلاف پرچے ہوئے تھے, یہ وہی ہے نا؟ جی وہی ہے, بہت بڑے جناب. یہ ان کی اپنی سوسائٹیز بھی ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں, یہ موجودہ جو کرنٹ صورتحال ہے نا, جو اس وقت کینڈیڈیٹ 3 لوگ مقابلے میں ہیں نا, پیپل پارٹی, مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی, ان کے بارے میں ذرا بتائیں. سر اس وقت انجم وکیل خان کا ٹکٹ جو ہے وہ اوکے ہو گیا ہے. انہوں نے کمپین اپنی زور و شور سے جاری رکھی ہوئی ہے. ان کو اوپر سے پولیس اور جتنے بھی ادارے ہیں ان کی بھی سپورٹ حاصل ہے. ان کے مقابلے میں ٹکٹ دیا گیا ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے ٹکٹ دیا گیا ہے. بہت پرانے 22 سال پہلے کے ایک ورکر ہیں یو سی لیول کے, ان کا نام ہے عامر مغل صاحب. یہ 9 مئی کے جو معاملات ہوئے تو اس میں ان کے بچے شچوں کو بھی کافی پکڑ دکڑ ہوئی, وہ بھی جیل میں رہے, کافی انہوں نے سختیاں برداشت کی. تو اسد عمر کی جگہ پہ کیونکہ وہ سیٹ خالی ہے تو عامر مغل جو ہیں ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ ٹکٹ اناؤنس کیا گیا ہے. عامر مغل صاحب ایسے ہیں جیسے کہ کھمبا ہوتا ہے, یعنی ایسی کوئی بڑی شخصیت نہیں تھی. ایسے ہی سمجھے, جس کے ساتھ پی ٹی آئی کا عمران خان کا نام آ جائے گا اس کو لوگ آنکھیں بند کر کے جو اسلام آباد میں ہم دیکھ رہے ہیں ووٹ ڈال دیں گے. اس لیے عامر مغل کو نہ تو اس طرح وہ آزادی ہے کہ اپنی وہ کمپین کر سکے. ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ ہے بینگن. بتاؤں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو وہ ہے بھی ذرا اس آج کل ساری گیم ہے پیسے کی. ہم لیتے ہیں یہاں پہ چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو آپ پاکستان کے 4 صوبوں کے جو ہمارے بیورو چیف ہیں ان سے سیاسی صورتحال معلوم کریں گے, اور محترمہ زیبا ناز جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں یہ اوورآل پاکستان کی, لاہور کی اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے معاملات یہ بتائے گی. لیتے ہیں ہم چھوٹا سا وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اسی وقت جو جاری ہے صورتحال پورے پاکستان میں, اور آپ کے لوگوں کی ابھی بھی پکڑ دکڑ جاری ہے. آپ کی الیکشن کمپین میں جو سے خلفشار آ رہے ہیں, اس بارے میں آپ کو قانونی چارہ جوئی کر رہی ہیں؟ حسن صاحب الیکشن ہونے دے, اور جس طریقے سے حکمرانوں نے اور الیکشن کمیشن نے قید تحریر جناب عمران خان صاحب کو بلہ چھین لیا ہے. بلہ تو چھین گیا ہے لیکن سارا جہیز آپس میں تقسیم کر دیا. ریڈیو دے دیا, گلاس دے دیا, بینگن دے دیا, اور ریڈیو اور مور کا نشان دے دیا. جہیز کی نشانیاں ہیں. یہ کوئی نہیں, گھر میں جانور بھی پالے جاتے ہیں, لیکن ہم انشاءاللہ ایسے بکھیڑے کے باوجود اپنے حلقوں میں جو بھی امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے ہیں ان کا نشان بینگن ہو, لوٹا ہو, کریلا ہو, چمٹا ہو, چڑی چھکے کا وہ چھکا ہو, اور کچھ بھی ان ظالم حکمرانوں کو اور نون لیگیوں کو پاگل کر دیں گے. اور پولنگ سٹیشن میں انشاءاللہ تعالی ورکر عمران خان کے دیوانے اور جیالے نظر آئیں گے. اب دیکھیں آپ کہ شیر خان مروت ہے
शेर मरवत है, शेर अफजल मरवत, शेर अफजल मरवत, कोई जानता था इसको? अब वो कराची जाए, खैबर पख्तूनख्वा जाए और कहीं वो चला जाए, हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये होती है कैपेबल पार्टी की निशानी। इमरान खान का किस भी शख्स के ऊपर हाथ रख देता है वो सोना बन गया है और लोग उसके पीछे हैं। इस तरह पाकिस्तान में तमाम उन रहनुमाओं को जो कहते हैं ये छोटे रहनुमा, ये बड़े रहनुमा, जिन को टिकट दिया है वो इंशाल्लाह बड़ी सीरियत से वोट लेंगे। नूरुल हबीब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नूरुल हबीब साहब, आप ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन जो हो रहे हैं इसमें आप क्या देख रहे हैं, किस पार्टी को यहाँ पे बरतरी हासिल होगी? और ख़ास तौर पर जो मानसेरा में जलसा किया है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, उसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा है, बुरा है, सहजेबल है या कम लोग थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले मैं तो N32 की बात कर रहा हूँ, पेशावर की। जी बताएं। पेशावर में तो इस वक्त तो ANP और जो PTI की आज़ाद उम्मीदवार हैं आसिफ खान और ANP की अलहाज गुलाम बिलोर, जी इस दोनों में बड़े तगड़े मुकाबला जारी है इस तो दोनों का। ठीक। क्योंकि ये अलहाज गुलाम बिलोर जो है ये 5 दफा इस हल्के का MNA रह चुका है और इमरान खान के मुकाबले में ये हार गए थे, ये वही है ना? ये इस बार जो हाँ वही है जी, इमरान खान के मुकाबले में ये हार गए थे। फिर इसने अपनी बहू को PK के टिकट दिया था जो पिछले इलेक्शन में उसने जीता था। PK अभी PK 83 है वो। अच्छा, और या लेकिन इन दोनों का मुकाबला जो है ना अभी सही ठीक तरह से जारी है। ये ANP से अलहाज गुलाम अहमद बिलोर और जो PTI की आजाद उम्मीदवार है आसिफ खान, N32 में इन दोनों का बड़ा तगड़ा मुकाबला है। ठीक। तो बाकी पेशावर की क्या सूरत हाल है? बाकी पेशावर की तो कौमी असम्बली की यहाँ पर 5 नशस्तें हैं और सूबाई आवाज कट रही है आपकी। नहीं, आवाज आ रही, सही आ रही, बोले आप। नूरुल हबीब साहब बोले, अच्छी आवाज आ रही है। यहाँ पर कौमी जी अभी ठीक हो गया। ये यहाँ पर ये सिग्नल का भी कोई मसला है। आप बोलते रहे हैं जी। यहाँ पर कौमी असम्बली का जो है ना वो पूरा 5 नशस्तें हैं और सूबाई का जो है 14 नशस्तें हैं। यहाँ KPK का पूरा टोटल वोट जो है 21,70,692 वोट है टोटल। यहाँ पर ANP के उम्मीदवार भी खड़े हैं, PPP की भी है, जमात इस्लामी की भी है, JUI की भी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी उम्मीदवार खड़े हैं इन सब हलकों पे। नहीं, जैसे आपने बताया ना, में एक हल्के का बताया कि वहाँ 2 कैंडिडेट मजबूत हैं, बाकी हलकों में कौन से कैंडिडेट है जो इनका कांटेदार मुकाबला होगा? कांटेदार मुकाबला सब यही हाल है। जो आजाद उम्मीदवार PTI के खड़े हैं ना, इनके और ANP के इन दोनों का कांटेदार मुकाबला है। पीपल पार्टी नजर आती कहीं? नहीं आती है, लेकिन इतना नहीं है तेजी से, जितना होना चाहिए इतना नहीं है। अब 10 साल ये खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि हुकूमत रही आपकी, और आपने आज नवाज शरीफ ने कहा कि कोई काम नहीं आपने किया। वो 40 साल उन्होंने एक साइड पे रख दिए और आज 3.5 साल एक साइड पे रख के वो 70 साल की जो तेरी बारी मेरी बारी एक साइड पे रह गई और ये चल पड़ा इनका अपना तमाशा जो हर 5 साल बाद ये लगाते हैं कि 5 साल तेरे और 5 साल मेरे। हर 5 साल में वो अपनी नई रुत दिखाते हैं और अवाम को वही लॉलीपॉप देना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस दफा नहीं होगा। ना ये 40 सालों में दूध की नहरें बहा सके और ना PTI 3.5 साल में बहा सके, क्योंकि इन्होंने 3.5 साल में इमरान खान को काम करने ही नहीं दिया। ये तो वो रोड़ा अटका के हर काम में ये आगे बढ़ते रहे और फिर शहबाज शरीफ साहब आ गए, आते ही उन्होंने ये रौला डाल दिया
और फिर वो आए तो फिर अबू बुझाई मुहिम चल पड़ी। इनके ऊपर जो केसेस थे इन्होंने कहा कि वो पहले माफ करवा ले, भाई को पहले बनाया, फिर बेटे को वजीर खारजा बनाया। मोहतरमा मैंने जो क्वेश्चन किया है ना, मैं उसी तरफ आ रही हूँ। 10 साल से हुक्मरान थे खैबर पख्तूनख्वा में, बिल्कुल वहां पे आज खड़े होके उसने स्पीकर पे ये ऐलान किया है नवाज शरीफ ने कि मैं मानसरा को जैसा मैं छोड़ के गया था वैसा ही है। तो ये आपने कोई डेवलपमेंट नहीं कराई वहां पे, काम ऐसे नहीं किया है। खान साहब, फिर इमरान खान साहब ने अपने दौर में जो फैसिलिटी आवाम को दी है, कार्ड दिया है, सेहत कार्ड दिया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इमरान खान साहब की। इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने अपनी मिलों के सीमेंट दिए हैं, इन्होंने सिर्फ वो काम दिए हैं जो कि आवाम से पैसा लूटने वाले थे। इनके घर के मुर्गी फार्म हाउस थे, इन्होंने वो महंगाई की, इन्होंने सरिया जो था वो महंगा वो बेचा। इनको आते सार अवाम की और महंगाई, अवाम की गुर्बत, अवाम को रिलीफ देने की कोई नहीं समझ आती। क्या ये सिर्फ हुकूमत जो है नून लीग वाले, ये ब्रिज बनाने को तरक्की याफ्ता काम कहते हैं, ये सीमेंट बेचने को तरक्की याफ्ता काम कहते हैं, ये किस चीज का लेके चलते हैं? आज इनके मुंह में सिर्फ ओवर ब्रिज, मोटरवे, क्योंकि ये इनकी कमाई का जरिया है, ये सिर्फ कमाने आते हैं। राय शौक साहब आप सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ जी, सुन रहा हूँ। राय साहब आप बता रहे थे ना ये पीटीआई का जो बंदा है वो यूनियन काउंसिल टाइप का था और खंबा को भी उन्होंने टिकट दिया है, तो आप इस बारे में आपके वहाँ खर्चा ज्यादा करने की जरूरत है या कि पीटीआई को खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है? नहीं जी नहीं, वो ना कोई कंपेन कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बताऊं कि उनको कंपेन करने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल उनको कंपेन करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी हर एक बंदा जो है वो तैयार बैठा हुआ है कि 8 फरवरी आए, मैं जो ही पोलिंग स्टेशन के अंदर जाऊं तो मैं यकीन माने कि अगर 10-10 स्टैंप लगाने की इजाजत होती तो लोग 10-10 स्टैंपल एक जगह पे लगा के आते। बिल्कुल। अच्छा, दूसरे दो हलकों की क्या सूरत हाल है जी? यहाँ से अंजम कील खान जो है, एक तो उनका वो बरादरी का भी मसला है, मैं अभी 46 की बात कर रहा हूँ, वो आपने आगे उनको ले लिया भाई को। 46 में ये है कि जनाब अंजम कील खान जो है उनको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, और दूसरा जिन लोगों को चौधरी वाजद हैं उनकी बहुत बड़ी गुजर फैमिली है, जो मलिक इब्रार के कजन हैं, वो इस्लामाबाद में आते हैं, उन्होंने भी पहले भी इनको वोट नहीं दिए थे और आइंदा भी शायद वो या शानी शाह जो है जिनको टिकट नहीं मिला और अंजम कील के खिलाफ शायद वो ज़ाहिरी तौर पे तो ना आए, लेकिन अपने अंदरूने खाना शायद वो वोट इनको इसलिए ना डलवाएं ताकि अगर ये जीत गए तो ये पक्के हो जाएंगे। नहीं जिस तरह अंजम कील खान साहब ने टिकट ये यहाँ पर इनके मुकाबले में कोई मुस्लिम लीग का आजाद भी इलेक्शन लड़ रहा है जिसको टिकट नहीं मिला। जी एक है मलक नूर साहब, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनका वो शेख ईद के साथ ना आज से कोई 5-6 साल पहले पार्लियामेंट हाउस के बाहर पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा जी क्या आपने चोरी देना है, गाड़ी का वो थे, याद है आपको जब मियां साहब के वो मामला चल रहे थे, वो अदालत वाले केस, उस वक्त की बात है। ये जो मलक नूर साहब हैं ये भी इलेक्शन पे खड़े हैं, इनका भी अपना काफी असर और सूख है, मतलब टब्बर बरादरी वाले बंदे हैं। तो इसलिए अंजम कील खान साहब को शायद ज्यादा मेहनत की जरूरत है अपनी सीट निकालने के लिए। इसके मतलब मुकाबले जो पीटीआई के अमर मुगल शायद उनको इतनी ना जरूरत है अपनी कंपेन की, और ना क्योंकि ऑलरेडी ये इसमें तकरीबन 50% जो एरिया है हल्का है वो सेक्टर का एरिया है, जिसमें लोग जो है खान को पसंद करते हैं, उनको तो जरूरत ही नहीं कहने की वो लोग वोट डालेंगे पीटीआई को। जितने भी सेक्टर की आबादी है, जो लोकल आबादी है इस हल्के में, वहां बरादरीज़म है, वहां से भी असद उमर ने इतने काम करवाए हैं कि पिछले 75 साल तारीख में इस्लामाबाद के उस हल्के में इतने काम डेवलपमेंट के नहीं हुए जितने असद उमर ने वहां पे काम करवा दिए हैं। ज़ाहिर बात है उनका सारा फायदा जो है क्रेडिट है वो इमरान खान की शक्ल टाइम की कमी है, बाकी दो हल्कों के बारे में आप ब्रीफ जी आगे आ गया जी। 47 जो दरमियान वाला हल्का है जिसमें फैसल मस्जिद आ जाती है, F7 आ जाता है, ये जो एरिया है इसमें भी तकरीबन जो 70% एरिया है ये सारा
सेक्टर का एरिया है जहां से अली वान जो है और शायद खाकान अब्बासी जो है वो इलेक्शन आ रहे थे पिछले इलेक्शन में, और वहां से अली इमरान खान खुद इस हल्के से इलेक्शन जीते थे, और इस अली वान उसके बाद ज़मीनी इलेक्शन हुआ, जीते, जो मिनिस्टर भी रहे। अभी अली वान जो है वो भी साइड पे हैं, उन्होंने अपना छोटा भाई एक खड़ा किया हुआ है, लेकिन अभी जो टिकट अनाउंस हुआ है वो वहां से एडवोकेट है जो इमरान खान के तर्जमान भी हैं, शोएब शहीन साहब जी जी, उनको पीटीआई ने अपना टिकट दिया है, जो एडवोकेट हैं, और उनको ज़ाहिर बात है इमरान खान का जो वोट है उनको टिकट दिया गया है, तो वो वोट शोएब शहीन को ही डलेगा। उनके मुकाबले में इन्होंने पहले तो इनका इस तरह का कोई नून लीग का नहीं था बंदा, अभी सुनने में आ रहा है कि जो साबका मिनिस्टर हैं पीटीआई के जो एमएनए थे आमिर कियानी, उन्होंने क्योंकि वो ज्वाइन किया है इसको अपना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को, तो ये आमिर कियानी वही है ना जिनको मेडिसिन का जिन पे केस पड़ा था? जी जी, वही दवाइयों वाला, जी वही दवाइयों वाला जिसने अरबों रुपए की करप्शन की थी और खान साहब ने इसको कुछ नहीं कहा था और इसने अपनी फुल दिहाड़ियां लगाई। ये वैसे तो माशाल्लाह राजा साहब आमिर कियानी साहब पहले बनते थे जी मैं अमेरिकन नेशनल लिल्टी है तो मैं बड़ा जनाब ये हूँ वो, लेकिन ये आते गए इन्होंने जनाब 2 माह में ही अपनी दिहाड़ी अरबों की लगाई और साइड पे हो गए। उसके बाद कोई इनके खिलाफ ना इंक्वायरी हुई, ना कुछ हुआ। ठीक है अब जैसे कि शोएब शहीन और ये आमिर कियानी के दरमियान मुकाबला होगा, अब तीसरे हल्के में क्या सूरत हाल है? सर तीसरे हल्के में, इसी हल्के में मैं और भी आपको बताऊं कि इसी हल्के में मुस्तफा नवाज खोखर भी है इसी हल्के में। अच्छा, तो मुस्तफा नवाज जो खोखर है वो भी आपको जानते हैं कि खोखर बरादरी जो है उनके जो वालिद साहब हैं हाजी नवाज साहब, वो भी एक एमएनए रहे, सेनेटर रहे वो, ठीक जी, एमएनए और स्पीकर रहे हैं नेशनल असेंबली के, उनके ये जी डिप्टी स्पीकर, और माशाल्लाह वो खोखर बरादरान का एक बहुत बड़ा हल्का बाब है, वो आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब, और उनके साथ जितने भी नून लीग के लोग थे वो उनके साथ हर रोज कोई ना कोई जो यूसी लेवल के लोग हैं वो उनके साथ, चेयरमैन जो यूसी हैं वो उनके साथ उनको ज्वाइन कर रहे हैं मुस्तफा नवाज खोखर की हद तक। आप मुकाबला मुस्तफा नवाज खोखर का और शोएब शहीन का देख रहे हैं या कि कियानी का देख रहे हैं? नहीं, ये कियानी का कोई मुकाबला नहीं है, ना कियानी को किसी ने वोट देने हैं, यहाँ मुकाबला होगा जो आजाद हैं। अच्छा, इसी हल्के में से खड़े हैं राजा खुर्रम नवाज साहब, जो वो किस पार्टी के हैं? इमरान खान को छोड़ गए थे जी, वो पीटीआई के, उन्होंने पीटीआई पे नाम कमाया, इमरान खान ने उनको एक पहचान दी, वो जनाब फिर वो रहे मशीर बड़े अच्छे होते पे राजा खुर्रम नवाज। अच्छा, आप तीसरे हल्के में हल्के का बताएं, तीसरे हल्के का बताएं, टाइम खत्म हो रहा है। तीसरे पे आ जाते हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हैं, उस हल्के में से देखा जाए तो वो इन दोनों हल्कों में से अगर नून लीग का देखा जाए तो वो इन दोनों में से ज्यादा जी जबरनाज साहब आप बता रही थी पाकिस्तान की सारी सूरत हाल, इसमें कुछ आप ऐड करें। जी, मैं एहसान साहब एक मैसेज आवाम को रिलीव करना चाह रही हूँ, डिलीवर करना चाहती हूँ कि शहीद ज़ूर अलाई की बेटियां गुजरात से भारी असरियत हासिल करेंगी। अच्छा, बीबी सुमेरा अलाई साहबा जो साबका वो जो हैं पीपी 34 से कौमी असेंबली के लिए, और दूसरी बीबी कैसरा अलाई साहबा जो है, कैसरा जो है परवेज अलाई साहब की बेगम, वो हैं पीपी 23 से। अच्छा, ये इलेक्शन लड़ रही हैं और इंशाल्लाह मोर उनका निशान है और पीटीआई की तरफ से ये खड़े हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अल्लाह ताला इनको कितनी इज्जत से नवाजता है और ये कितनी बड़ी शरीयत से ये कामयाब होंगी। ज़ेबराज साहब, आप ये भड़क मार रही हैं जी, वहाँ पर इनके मुकाबले में जो है
وہ ان کے ہی کزن، ان کے بھتیجے جی جی وہ جی قابل ہے اور ان کی بھی بڑی ساکھ ہے. بالکل تو بالکل، وہ ساکھ کوئی وہ نہیں ان کو ان کے رگڑ کے رکھ آگے. دیں گے. نہ نہ جی، یہ آپ کی بھول ہے، یہ ان لوگوں کی بھول ہے کہ وہ ہمارے مدر مقابلہ آئیں گے، وہ لڑے الیکشن. ہم بھی ساری زندگی تو وہاں ہی رہے ہیں نا گجرات میں، تو ہمیں بھی تو پتا ہے کہ ان کی کتنی ساکھ ہے کتنی نہیں ہے. ان کو تو لوگ جانتے نہیں ہیں، ان کو تو ابھی نئی یہ دوسری عشق بازی نے آ کے سیاست میں دھکا مار دیا. لینڈ پہ آیا دوسرا تو دھکا مارنے سے آپ سیاسی لوگ نہیں بن جاتے ہو. یہ ہمیشہ بیک ڈور میں رہے ہیں، ان ڈور میں نہیں رہے. مونا صلاحی صاحب نے ہمیشہ سیاست گھر سے شروع کی اور سیاست میں انہوں نے ڈیلیور کیا عوام کو. یہ دوسرے جو شجاع صاحب کے بیٹے ہیں، سالک صاحب ہو گئے، شافع صاحب ہو، انہوں نے کیا عوام کو ڈیلیور کیا؟ یہ کہاں عوام میں آئے؟ ان کو عوام جانتی ہی نہیں ہے. تو مجھے بتائے، عوام ان لوگوں کو جانتی ہے جنہوں نے ساری عمر عوام میں گزارا ہے، عوام کو ڈیلیور کیا ہے، عوام کو 1122 دیا، عوام کو کیا کچھ نہیں ڈیلیور کیا. اس سے کمیشن حاصل کی ہے، کس سے؟ جس کی بنیاد پر ان کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں. نہیں، اس کی بنیاد پر ان کی یہ الزامات ہے، یہ الزامات ہے. آج تک کوئی کیس بتا دے مجھے مونا صلاحی صاحب کے اوپر یا پرویز الہی صاحب کے اوپر کوئی صاف الزام کوئی ہوا ہو کلیئر. ہر پیپر میں انہوں نے کہا جی الزام پہ یہ تو ہوئے ہی نہیں غلط، تو انہوں نے پھر اور کیسوں میں ان کو ڈال دیا. جب وہ کسی کیس میں الزام ان کے درست نہیں ہوتے تو وہ دوسرے کیس لے لیتے ہیں. یہ دیکھیں عدالتوں سے بری ہوتے ہیں، جج ان کو بری کی ضمانت دیتے ہیں، باہر آتے کوئی اور پکڑ کے لے جاتا ہے. یہ زندگی میں ہم نے اپنے ٹینور میں فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ جج کی بے رحمتی کرتے ہوئے، عدالتوں کی بے رحمتی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جج صاحب نے کہا ہو کہ ان باعزت بری کر دیا ہے، ان کو نہ روکا جائے، نیپ والے آ جاتے ہیں. پاکستان کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پی ٹی اے کو ووٹ ڈالیں؟ میں اپنی عوام سے ایک ہی بات کرنا چاہتی ہوں. عوام ہماری بڑی باشعور ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے بعد عمران خان صاحب نے اتنا ویژن دے دیا ہے کہ وہ ہر اپنے کینڈیڈیٹ کو اس کے نشان کے ساتھ یاد رکھے اور بیڈ نہ ہو، مور پہ جو بھی نشانات دیے جاتے ہیں ان کو فالو کریں اور ٹھپا انہی پہ لگائیں. زیبنا صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی پوری پارٹی کا پلان دیا. آپ ہمارے اسٹوڈیو موجود تھی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. نور الحبیب صاحب بیورو چیف پشاور تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. راجہ شوکت صاحب نمائندہ اسلام آباد تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں آج اس ٹی وی چینل کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ان تمام سیاسی پارٹیوں کو جنہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ سے ٹکٹیں حاصل کرنے کے لیے 3 لاکھ 5 لاکھ اور رشوت کے طور پر کروڑوں روپے لیے اور ان کو ٹکٹ نہیں دیے. وہ خدارا ان کو سب پیسے واپس کر دیں. وہ کچھ غریب لوگ ہیں، کسی نے بالیاں بیچی، خاص طور پر خواتین، کسی نے اپنے گھر کا سامان بیچا، کسی نے اپنے گھر کے میاں سے لڑائی لی، کسی نے اپنے بیٹے کی تعلیم جو تھی اس کے پیسے لے لیے، کسی نے جہیز کے پیسے لے لیے. تو خدارا آپ وہ تمام سیاسی پارٹیاں جنہوں نے ایسے ورکروں سے پیسے لیے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں وہ غریب ہیں، ان سب کو پیسے واپس کر دیں تو یہ ان کا اللہ بھلا کرے گا. آج جب میاں نواز شریف کی بڑھ کے مار رہے ہیں وہاں پہ، آپ ان کو پیسے واپس کر دیں، وہ کبھی نہیں کریں گے. پیپل پارٹی ہے، وہ پیسے واپس کر دیں، کبھی نہیں کریں گے. پی ٹی آئی نے تو پیسے لیے ہی نہیں، ٹکٹ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. اگر پی ٹی آئی بھی لیتے تو میں ان سے بھی یہی گزارش کرتا کہ آپ پیسے واپس لیں. تو آج ہم نے اپنے جو سوالات کیے اور میرے پینل نے جو جوابات دیے اس کا فیصلہ کرنا آپ